Stop. Before you click the submit button on your CAT 2026 application, watch this video till the end. One small mistake today can cost you your MBA dream. Every year I receive hundreds of messages from CAT aspirants saying, "Sir, I entered my marks incorrectly. Sir, I uploaded the wrong photo. Sir, I selected the wrong category, and unfortunately, many of these mistakes cannot be corrected after submitting the application." That's exactly why I am creating this detailed guide. Instead of simply showing screenshots, I'll fill my own CAT 2026 application live from the first field to the final submit button, exactly the way you should fill yours. We will go through every important sections of the application: your personal details, class 10th and 12 marks, graduation details, work experience, category, photo, signature, exam city preferences, and the common mistakes that students make every single year. I'll also tell you which mistakes can still be corrected, which mistakes become permanent after submission, and the simple checks that can save you from unnecessary stress later. So keep all your documents ready, open the CAT application portal, and fill your CAT form along with me. By the end of this video, your CAT 2026 application should be completed, accurate, and submitted with confidence. Let's get started. The journey starts with the filling CAT forms, the officially CAT journey. Otherwise, the CAT journey starts from thinking of the MBA. You could think this journey in the class 8, class 10th or the 12th, or after the graduation, or even after the UPSC mains. So let's begin the journey. CAT फॉर्म में अगर कुछ भी आप गलत करते हो तो चांसेस कुड बी यू आर गोइंग टू लूज द कैंडिडेचर फॉर द IIMs. सो राइट नाउ मेरे पीछे CAT का वेबसाइट है. आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल्स कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वेयर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू द मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स कहां पे करते हैं, कहां नहीं करते हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा. सो वॉच दिस वीडियो इन द डिटेल. आई विल आस्क माय टीम टू ऐड द टाइम स्टैम्प सो यू कैन ऑल्सो फाइंड कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. First of all the best for your MBA dream and the journey. So what is the CAT form? So in the CAT, we have a multiple B schools. One B school is the IIMs, a group of IIMs which has 22 IIMs. The second B schools would be the IITs, and the third B school are the other B schools. So if you are going to do any mistakes, the chances are this is going to impact your IIMs dream. Chances are they could not create any problems in the other B school like the MDI, SPG and IIM, because the other B schools are just taking the data from the CAT website. So what data they are going to take? They are going to take the data of your name, your date of birth, your father's name, and the CAT marks and the CAT percentile. I'm again going to repeat. The other institutions are going to get the data from the IIM Indore right now, the CAT committee, your name, your date of birth, your CAT marks, or some basic other details. So if you are going to do big mistakes in the CAT forms, this is not going to impact the other B schools. Chances are, but if blunder happens, this is going to impact everywhere. So we are not going to do any single mistakes or the blunder in the CAT form, else I personally believe कि आपका मिस्टेक आपको टेंशन दे देगा. चांसेस है कैंडिडेचर पे भी इफेक्ट आ जाएगी. तो बाकी को मत सुनना कि मुझे एक फॉर्म भरना है, दूसरा फॉर्म भरना है. इवन इफ यू डिड एनी मिस्टेक्स इन द CAT फॉर्म, सेकंड फॉर्म भरने के पहले मुझसे बात कर लेना, हमारी टीम से बात कर लेना. ऑलवेज वी नीड नॉट टू फिल द सेकंड फॉर्म. हम हमेशा सेकंड फॉर्म नहीं भरते हैं. कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, इंक्लूडिंग योर नेम्स, जो बाकी लोग बोलते हैं, इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स वी कैन रेक्टिफाई. सिग्नेचर है, सब कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं. Like your category, you cannot rectify your category. I am going to say again loud and clear. There are many mistakes you can rectify before CAT examination, like your name, your father's name, your date of birth, or something else apart from the category. So कैटेगरी को अच्छे से फिल करना है, वो डिटेल अच्छे लगना है, बाकी कोई गलती नहीं करनी है. ऐसा नहीं कि अमीर सर ने बोला है तो ये गलती अगर मेरे से हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर सर देख लेंगे, भला हो जाएगा. तो आई डू से कि अगर कुछ गलती होती है तो सेकंड चांस में जो CAT का फॉर्म भरोगे उससे पहले यू मस्ट डिस्कस विथ अस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फर्स्ट, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है. सेकंड, अगर होता है तो तुरंत CAT का फॉर्म नहीं भरना है. ये सारी बातें आप अपने सारे लोगों को बता दो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज बाकी जगह जो लोग होते हैं ना, वो CAT की वेबसाइट को देख के ही बात करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है.
एनीवे लेट्स बिगिन। हमारे पास होना क्या चाहिए, यू शुड हैव योर मोबाइल रेडी, बिकॉज इसमें आपके मैसेजेस आएंगे, आपका व्हाट्सअप आएगा, नॉट व्हाट्सअप दैट इज एसएमएस आएगा, और उस एसएमएस में ओटीपी होगा, उस ओटीपी को यूज करना है। आपके पास आपका ईमेल आईडी रेडी होना चाहिए, और आपके पास कम से कम दो चीज रेडी होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ्स। सो आई एम गोइंग टू शो कि क्या क्या हमें चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। तो लेट्स चेक कि अगर मैं आता हूं तो ये फोल्डर है मेरा जिसमें मेरे फोटोग्राफ्स हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये फोटोग्राफ्स मेरा थोड़ा सा पुराना है, बट फोटोग्राफ्स में वो बोलते हैं कि यू नीड टू हैव अ 6 मंथ का फोटोग्राफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक फोटोग्राफ हो जिसका चेहरा, जिसका फोटो आपसे रिजेम्बलेंस करता हो 99%, बिकॉज आपका ही फोटो होगा वो हो। बैकग्राउंड हमारी व्हाइट होनी चाहिए। सर मेरा बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो मैं क्या करूं? तो लॉट ऑफ ऑनलाइन टूल्स जिससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आप बैकग्राउंड को रिमूव करके व्हाइट कर लेना, ये हो सकता है। सिग्नेचर चाहिए। बहुत बार वो बोलते हैं कि मोबाइल यूज मत करो, बट इवन यू कैन टेक योर फोटो फ्रॉम द गुड क्वालिटी ऑफ मोबाइल, बैकग्राउंड रिमूव कर दो, उसे यूज कर सकते हो। सेकंड, फॉर द सिग्नेचर, गेट अ व्हाइट पेपर, ब्लैक पेन से साइन कर दो। आई एम गोइंग टू से ब्लू को व्हाइट करो, ब्लैक पेन से साइन कर लो, उसको फोटो ले लो, उसको क्रॉप कर दो और अपलोड कर दो। सर आपके पास इतने सारे फोटोज क्यों हैं? यू हैव 4 फोटोज। अगर आप देखोगे तो अमीय न्यू फोटो है हमारा, देन अमीय फोटो जेपीजी है, अमीय फोटो है, अमीय फोटो जेपीजी है, देन द सिग्नेचर है, सिग्नेचर आईएफटी है, आईएफटी 1 है। तो इतने सारे क्यों हैं? बिकॉज एवरीवेयर व्हेन वी सी, कोई मांगेगा जेपीजी में, कोई मांगेगा पीएनजी में, किसी का साइज डिफरेंट होगा, किसी का साइज डिफरेंट होगा। तो सर कैसे करें? फर्स्ट यू नीड अ रिसेंट फोटो। अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक गुड क्वालिटी कैमरे से फोटो खिंचवाए। इसके लिए स्टूडियो नहीं जाना है कि मुझे जाके स्टूडियो में फोटो खिंचवाते, नहीं, आप आराम से कोई भी बैकग्राउंड ले लो। यू शुड हैव सम बैकग्राउंड, उस पर फोटो खींच लो, क्लिक, दोनों कान लाइक दिस, चेस्ट तक का फोटो आपके पास होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। देन फोटो को क्रॉप करो। देयर इज अ लॉट ऑफ टूल्स ऑनलाइन फ्री हैं जो बैकग्राउंड रिमूव कर देती हैं। साइज को अपने आप को एडजस्ट कर दो। सेम यहां पे साइज एडजस्ट करने के लिए ये जो स्कुस ऐप है, SQUOOSH, ये गूगल का अपना फंडा है। आप इसमें किसी भी फोटो को अपलोड करोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, किसी एक फोटो को अपलोड करके, मैं अपने ही फोटो को यहां पे अपलोड कर देता हूं। लाइक मैंने ये फोटो अपलोड किया। आप जब ये फोटो को अपलोड करोगे तो आपका दो होगा, ये आपका ओरिजिनल दिखेगा, ये आपका क्या दिखेगा, दूसरा। आप इसमें जो भी चाहिए कि मुझे ये जेपीजी चाहिए, किस साइज में चाहिए, वो आपको साइज यहां पे बता देगा कि साइज 5.51 है। मैं अपने आप को साइड कर लेता हूं तो आराम से दिखेगा। लेट्स सी कि यहां पे क्या है। सो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता हूं और मैं अपने आप को लेफ्ट राइट करता रहूंगा एज पर द केस। तो हमने SQUOOSH पे अपने फोटो को ड्रैग करके डाल दिया। दिस इज फॉर द पीपल जिनको फोटोज का साइज चेंज करना है। यहां पे आपके पास एडिट होता है, आप जब उसमें जाओगे, इन द एडिट में जब ये ब्राउजर कंप्रेस करोगे तो आपको जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, एज पर द नीड आप उसको देख लेना। देन आप मान लो कि पीएनजी चाहिए तो साइज कितनी चाहिए, वो साइज आप यहां से ले सकते हो। ब्राउजर पीएनजी है आपका, आप जेपीजी जाओगे तो क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो कि अगर आप कम क्वालिटी करो तो साइज कम हो जाएगी। आप देख सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन ब्लर भी हो तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो कि 5 GB का है, तो यहां से आप ये सारा कुछ चेक कर सकते हो। सिमिलर गोज विद द सिग्नेचर, आप सिग्नेचर को भी यहां पे डाल सकते हो, उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए जरूरी है। पहली चीज, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए जिसमें मैसेज आएंगे, और ये नंबर्स आपका चालू होना चाहिए टिल द नेक्स्ट मार्च तक, मिनिमम मार्च तक। जून तक अगर हो तो अच्छी बात है, ऐसे मोबाइल चेंज करते नहीं है हम। देन वी शुड हैव अ फोटो एंड द सिग्नेचर रेडी। अगर फोटो और सिग्नेचर में कोई डाउट होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो यू कैन यूज SQS। ये गूगल हेल्प का है, बहुत आराम से चेंज करता है, आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। आपको ये चाहिए, दो चीज चाहिए। तीसरी चीज जो आपको होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके साथ, अगर मैं बात करूं तो दैट्स दी योर 10th और 12th सर्टिफिकेट। आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट, क्योंकि हमें 10th और 12th के मार्कशीट को यहां पे अपलोड करना है। 10th में हम सारे मार्क्स को यूज करेंगे जो उसमें हैं। इवन आपके पास सोशल साइंस का भी है और इसमें ग्रेड दिया हुआ है तो हम वो करेंगे, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशन जो उसमें लिखा होता है डिसिप्लिन और समथिंग एक्स्ट्रा, हम उसे यूज नहीं करते हैं। बट जितने भी हैं 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स, उसके सारे मार्क्स 10th में यूज होंगे। बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5 नहीं, जो सारे मार्क्स हम उसे यूज करेंगे। अगर आपका ग्रेड या CGPA है तो आप इसे कन्वर्ट करोगे। जनरली
सीबीएसई के ग्रेड और सीजीपीए जनरली 9.5 से मल्टीप्लाई होते हैं। साउथ इंडिया में भी 9.5 से बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, अनटिल अनलेस वो बोलते हैं कि 10 सीजीपीए इक्वल टू 100 मार्क्स। बहुत जगह ऐसा होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, और कहीं भी डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उस डाउट को हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो आपका 10th का मार्क्स होना चाहिए, आपका 12th का मार्क्स होना चाहिए, आपके कैटेगरी अगर आपके पास है ईडब्ल्यूएस जो भी है वो होना चाहिए। तो हमें देखना है कि हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये 5 साल में, दैट इज इन द विद इन द 5 years ऑफ द स्पैन इंक्लूडिंग दिस ईयर, आई क्रिएटेड वन थिंग फॉर यू, द डाउट। वी हैव अ 3 बार, यहां पे हमारा 3 बार है education.org.in। डिस्क्रिप्शन में जब आप इसमें नीचे आते हो तो यहां पे कैट फॉर्म हेल्प है, यहां पे कैट फॉर्म हेल्प है। जब आप इस पे क्लिक करते हो कैट फॉर्म हेल्प पे, तो दिस इज गोइंग टू ओपन आर education.org.learn। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपके कैट एंड ओमेट 26-27 एग्जाम्स का सारा सोल्यूशन होगा। वी हैव 130 ऑफिशियल आंसर्स हमने इस पे अपलोड किया हुआ है। 11 हेल्प कैटेगरी हमारे पास है। वी अपलोडेड अराउंड 500 प्लस क्वेश्चंस जो नॉर्मली लोग पूछते हैं, सर ऐसा हो तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, मेरे पास ये है तो क्या होगा। अगर मैं बात करूं एक सिंपल सा सीजीपीए, इफ आई राइट द सीजीपीए, तो सीजीपीए पे जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे होंगे वो हो जाएगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा है सीजीपीए मुंबई का, आई डोंट नो हु इज ही और सी, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कभी भी कि सीजीपीए, आई मुंबई यूनिवर्सिटी सीजीपीए माई दिस, आपका क्वेश्चन यहां पे होगा, आपका यहां पे सॉल्यूशन भी होगा कि ये एग्जैक्टली क्या होता है एज पर द एफएक्यू क्या है। यहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा कहां पे, दैट्स द केस माई कोर्सेज, ये सब जो है डाउट्स में आ जाओगे, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास कैट का है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आप क्वेश्चन पूछते हो, लाइक इफ आई से आई एम फ्रॉम बिहार, हाउ कैन आई गेट द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो एंड आप आगे जाते हो और ये यहां पे नहीं दिखता है, लाइक 1 वेरीफाइड आंसर्स है, तो चेक योर आंसर एंड जनरेट गाइडेंस भी आप कर सकते हो। यहां पे आप जब गाइडेंस करोगे तो ये एआई हमें सब कुछ भेजने लगेगा, नॉट शुड बी सेव, डेटा वाज नॉट द चेंज। तो आप ये क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो, आप आज का फॉलो अप कर सकते हो कि चलो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये आपके डाउट्स में जाना स्टार्ट करेगा। तो आप अपने डाउट्स को यहां पे पूछ सकते हो। आप डाउट्स डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हो कि नहीं सर आपका क्या है क्या नहीं है, आपका क्या कहना है, बट आस्क अमीर सर इज अ स्पेशल प्रीमियम फीचर्स जिसके लिए पेड होगा। आस्क योर डाउट्स के लिए भी आपका जनरली बहुत बार पेड होता है, तो आप यहाँ पे सारे पूछो और बहुत कुछ फ्री है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो education.org.in/learn पे जाके कैट, इट हैज मोर देन 500 डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर द 4 to 5 years। यहाँ पे हो सकता है कि ये डाउट्स हो, और ये लास्ट 4 अगस्त दैट मीन्स आज वेरीफाई हुआ है, और हम लोग इसको बार बार वेरीफाई और अपडेट करते रहते हैं कि आपके डाउट्स, आप परेशान मत हो, यहाँ पूछो, एंड दैट्स अ जेन्युइन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप आराम से आस्क योर डाउट्स में मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो या कुछ और से। तो दिस इज द केस, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैट में क्या है। तो फर्स्ट यू शुड रेडी विथ योर फोटोग्राफ्स एंड द सिग्नेचर, योर 10th मार्कशीट, योर 12th मार्कशीट, योर ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन 1, ग्रेजुएशन 2, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट। देन यू शुड हैव योर वर्क एक्स का डिटेल, सारा डिटेल आपका होना चाहिए विद द ज्वाइनिंग डेट एंड रिलीविंग डेट, सब कुछ होगा। मैं ये वीडियो इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग वीडियो, द टाइम स्टैम्प शुड बी देयर, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैट के फॉर्म पे, और बाकी चीजों को हम थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर देते हैं। तो लेट्स कम हियर, मैं बाकी चीजों को हटा देता हूं। तो वी हैव द कैट का वेबसाइट। इन द कैट वेबसाइट व्हाट वी हैव, the top we have the 22 IIMs, then their logos. This is the home screen. This is about us, about the cat. This is exam cities. Must check the exam cities. आप कहाँ fill करने वाले हो. If you are going to check the exam cities, like I am from the Jharkhand, so I am going to say the JS. Then we have a Jharkhand. Jharkhand has a 5 cities preferences, which is Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, and Ranchi. I am from the Ranchi right now. Though I am from the Bihar, I am from the Ranchi, so my first city preference should be the Ranchi, and the rest city preferences should be based on my nearest location. So plan your CAT 29th November as per your future planning. What it means?
Many times I have seen कि sir my projects was in the Bangalore. I was in the Bangalore, but in the November I could be in the Kolkata. Where should I choose my city? To plan according to this कि मैं यहाँ पे हूँ. Or the biggest problem the student who are in the final year is going to face in the exam city preferences. If they are going to get the placement, right now you are in Delhi, you are going to choose the city in the Delhi, but you are going to get a placement, your city should be the working city should be the Bangalore, then that could be a problem. You cannot predict the future. So today you predict the best city. Like the chances of you are going to get a placement or the promotion or the transfer, then at least choose one city which is well connected with any of the part of the India. So you need to select the city. You will get a only single time option to change the city. Yes, post CAT registration, that means the CAT registration start from the 3rd of the August till officially go to the 3rd of the July till the 15th of the August. But after the 15th of the August, they will again extend for the 5 extra days. So till the 20th of the August, then from the 23rd of the August to the 25th of the August, 3 days, they will give you to update your photograph, signature and the test preference cities. You can change in those. So they will give you 3 chances to change your details. First, right now, you are filling the form before submission. Second, during the CAT journey. And third, again, they are going to give you a chance. So that's why I always say, before filling the next form, because it has a cost of 1350 or 2700, discuss with your mentors, should I fill your form or not? Not the mentors who are talking about bullshit. I'm just saying, they say कि CAT में 2 फॉर्म भरोगे, एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा. No. Many things happens which is not written on the website, or which even the written could be adjusted, because this is the management. You can manage the things, but the first thing you should manage, do not do any mistakes. कोई mistakes नहीं करेंगे. It has a lot of FAQs, आप वहां से देख सकते हो, but all the FAQs are in the education.org/learn. सारे FAQs यहाँ पे डाले हुए हैं हमने. जितने भी FAQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, of the FAQs and of the questions we are having in the CAT 2026 forms. Just type a few words, you are going to get all the suggestions and going to get the great help. So the Learn is not basically on the CAT forms. This is going to be the one-stop solution and the best friend for your entire journey. For example, if you go in the profile mapping, in the calls and the outcome sheet, if you fill all the forms and take the test, they are going to say with the 98% accuracy how much score you are going to get. You should target at least to get the calls and the high chances of the conversion. So it has more than 60 courses. You can see it has more than 60 courses. We are going to add IIMs, IITs, non-IIMs and the other B schools. So here also you can check the chances. How much should I target in the CAT? So this is the brief introduction of what we have all about. Now come to the home page. So in the home page, you are seeing the 4 tabs. We are going to discuss the 4 tabs. Registration of the non-institutions. Look, I said non-IIMs. CAT has the 3 type of category. One is the government institution, one is the non-government institution. So government has the IIMs, IITs and some other university college and the non-government institutions. If you are non-IIMs, because the IIMs has only 22 IIMs and they have a different courses. If you are non-IIMs and you want to get the CAT details, like the details of a student based on their name, their category and so, you should fill the non-IIM institution. So this is for the non-IIM institution, like the IMT, SPGen IMR, other colleges. So this tab is for the other colleges. It is not for you. If they fill the forms, they paid the payment of something, they will be in the bottom line. So this bottom line is for those colleges who are allied with the CAT. So this process just started. After a few days, you are going to see some logos here only, and they are the colleges. This is CAT 2025 scorecard. So if you have taken the CAT 2025, you are going to get this. Now, the one prominent question people are asking, sir, I also filled the CAT in the last year. Should I have to register again? So many of the examination, like the government examination, like the SSC and some other examination, you should register only once in the entire your life. The data should be taken from there only. No. In this case, for the CAT and the IIMs, you should have to register every time. They scrap the data because the authority and the other parts
is going to change because your life is going to change within 1 year. Last year you could be the general, this year could be the NCOBC, could be the EWS, something that changed. So if even you have registered yourself last year, you have to register again this year also. So we need to bring with the CAT registration. First, you need to click on the CAT registration. You need to register yourself. They will give you the ID and the password. With those ID and the passwords, you have to keep yourself safe in your mail and the WhatsApp or anywhere. You should have to have your ID and the password intact till the January and February or the next year. Then after registration, we are going to have the candidate's login, and the login is important. So let's begin with the registration. So I'm going to register. For this register, you need to click. The new window will open. This window will show how to register, which browser you are going to use. So generally you need Mozilla, Google Chrome, Edge browser hai, and there's no need to go for the Safari. If you're the MacBook users, so you are used to of the Safari, so I'll say use the Chrome or the Mozilla or the Microsoft Edge. I would say go to the Chrome. The asterisk marks are important. I never ever say use any Android or the iOS version. No, filling the CAT form should be on the desktop. Do not use the iPad or so on. So this is disclaimer. That means we are going to keep your applicant's name, date of birth, mobile numbers, and the email address for the data purpose. So these are for the data purpose. Say I agree, I am going to give you all the rights. You can keep all these details. Here I would like to say, never ever share your CAT registration number, which is generated after the registration, your email ID, your date of birth, and your mobile number all at a time to some unknown people. Definitely we are going to ask all details to you if you're going to come with us. Definitely we are going to ask. But because after using this, anyone can amend your I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Lucknow. Some of the IAMS form could be amended. Even the IMC, some of the IAMS, if you have a call, they can amend the calls. So do not share these other details. So let's start. I'm going to set each and everything so that you can see. So first we are going to start. So the video of the CAT 2026 form begins from this time around the 21-22 minutes. First, you need to write the name Amiye Kumar. This is my name, Amiye Kumar. Now here the name is the most important. The name should be based on the 10th certificate. They are saying note, but please remember, it should not be based on only the 10th certificate. It should be based on what you are going to use. Like you have a name, then you change your name in the 12th and the graduation in the Aadhaar and the PIN, and you have the affidavit. You change your name from the 10th to some other names. So use the name which is officially yours with the backed support documents. So everyone say that the name should be based on the 10th. No. Use the name which should be officially your names supported by the some of the affidavit, first magistrate affidavit, or your 10th name is your official name. So here the message is candidate name should enter exactly it appears in the 10th SSC certificate. No, this should be official name. What I am saying, सर मेरा ऑफिशियल नेम अमीय कुमार सिन्हा है, मेरे पैन में भी वही है, मेरे टैन में भी वही है, मेरे आधार में भी वही है, मेरे 12th में भी वही है, मेरे इसमें भी है, लाइक मेरा श्वेता कुमारी नाम है, बट SH और SW में प्रॉब्लम हो गया है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जो आपका नेम है वो यूज करेंगे. ये याद रखिएगा. लाइक आप शादीशुदा हो और आपका नाम चेंज हो जाता है तो उस केस में 10th का ही नाम यूज करो. लेकिन आई एम गोइंग टू रिपीट वन थिंग मोर. इफ दिस नेम वोंट मैच टू द ID card you are going to take in the CAT forms D-Day, you won't be allowed until unless you need to fill up extra form. So you'd be allowed. That's the management when you talk this. So if you have any discrimination with your name, or you have right now the new name or the something else, should I fill the 10th or that one? Discuss with the team, because it's not always what is written. It's always which is practical, which is acceptable. Ye maan ke chalo. So this is Amiye Kumar. This is my name. Date of birth should be what as per the 10th certificate, which should be generally in the Aadhaar and something. If all the certificate have the same name and the same date of birth, Aadhaar has a different, Aadhaar ka correction karwa lo. Now we have year,
मैं काफी यंग हूं तो मैं आता हूं 1983 एंड द फेब एंड द 7th. दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ. आई एम गोइंग टू यूज द ईमेल आईडी. ये जो ईमेल आईडी मैं यूज करने जा रहा हूं, दिस इज नॉट माई ईमेल आईडी, क्योंकि आपको ये विजिबल है. दिस ईमेल आईडी इज ऑफ द टीम. टीम इसमें सब कुछ देखते रहती है. इस ईमेल आईडी को मैं टीम का यूज करता हूं. सो वी हैव amie@3learning.co.in. ये ईमेल आईडी अभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा. और अगर आपके ईमेल आईडी में कुछ बहुत है, अमीए डूड रॉक, तो ऐसे एक नया प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लो. अभी ये टाइम है, क्योंकि ये सब जो ईमेल आईडी ना, आप जब एग्जाम मतलब इंटरव्यू में जाओगे तो भी दिखता रहता है कि योर ईमेल आईडी इज अमीए डूड रॉक. सो अच्छा नहीं दिखता है. सो एक छोटा सा ईमेल आईडी बना लीजिए, 3learning.co.in. दिस इज द केस. कंट्री कोड, आई एम फ्रॉम द इंडिया. मोबाइल नंबर मेरा है 9905050159. This is the mobile number and confirm mobile number 9905050159. स्टिल अगर कोई भी कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप लर्न पे जाके दैट इज एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें डाउट्स में यहां पे डाउट्स पूछ सकते हो. सो दिस इज द केस. या आप डायरेक्ट यहां पे आस्क डाउट में पूछ सकते हो. इफ यू आर इनरोल्ड इन द प्रोफाइल मैपिंग और प्रोफाइल मैपिंग प्रो कंसल्टिंग, तो आप वहां से भी डाउट पूछ सकते हो. नाउ वी हैव फिल्ड द फॉर्म and generate the OTP. So 2 OTP should be generated. Before this, we need to fill the captcha 133457 and then the submit. So we are going to get the mobile OTP and the email OTP. So let's check. We have what we are going to get in the mobile. Just 1 second. This is Office Mobile. So the mobile OTP is 801-428. So you're going to get SMS from IIM Indore of Management. जो आपका है IIM इंदौर से आपका आएगा. Indian Institute of Management Indore, and then the email OTP. We need to fill the email OTP. Let's check the email OTP में क्या है मेरे पास. For this you need to have the data with you. So we got the email OTP, and this OTP is 552959. 552959. So first validate this one, then validate this one. So your mobile number and the email ID is registered. If you are going to make any mistakes, you need to fill another form with the new mobile number and the new email ID. Declaration I agree, and then the captcha 186626, and then the confirm. So this is the detail. Now you need to check your details. Your name is AMIYAKUMAR. Then select yes, this is my name. 7/2/1983 is my date of birth. Tick AMIYA. This is the email, obviously, because I got the OTP. I am from India, and this is the mobile number because I got the OTP here only. Then submit. When you submit and you say okay, your registration is done. So you are a registered candidates. You are the registered candidates. Then registration successful. Close this. You are going to get, like, this is your user ID. You say we are sitting on the 4th and 11,817 registration happened. The last day, that is on the 3rd, when I registered for the first time, my registration was something in a double digit, but day 1 and a day 2, 11,000 students registered. Why you are in the so hurry? I do not understand. I said, na, accuracy is not important. The speed is not important. Accuracy is important. So I got the SMS. You get the SMS. I'm going to save this one. Even on my mail, I got the user ID and the password. So save your user ID and the password. This is going to help you a lot. So I'm going to save this one. Okay.
जस्ट 1 सेकेंड, ऑलवेज सेव, इवन यू आर गोइंग टू गेट द मेल, तो मेल पे भी सेव कर लो, दिस इज गोइंग टू एड यू अ लॉट ऑफ वैल्यूज। तो चलो यहाँ करते हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स है। ग्रीवेंस पोर्टल्स में क्या है कि आपने अगर कुछ पोर्टल में क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, बट हमें अब करना है एप्लीकेशन पे जाना है। वी कैन गो टू द एप्लीकेशन, या आपका जो आईडी पासवर्ड है आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के थ्रू भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू फिल ऑल द फॉर्म्स इन द वन गो, यू कैन फिल द फॉर्म्स इन द स्मॉल बकेट्स, बट फॉर्म्स को हमेशा सही भरना। सो फॉर्म्स हैज टोटल 6 थिंग्स: पर्सनल डिटेल्स, academic details, let me show you everything। मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं, तो वी हैव व्हाट, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, लेट मी चेंज माय पोजीशन। मैं अपने पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि कैसे क्या है, नहीं है, लेट्स सी। सो वी हैव अ पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स हमें कौन सा फिल करना है, टेस्ट सिटी और डिक्लेरेशन। सो पर्सनल डिटेल्स में दिस इज योर नेम, आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो कैंडिडेट्स फादर्स नेम में जो लोग गलत करते हैं, कैंडिडेट का जो है फर्स्ट नेम और यहाँ पे कैंडिडेट्स मिडिल नेम, कैंडिडेट्स लास्ट नेम, तो कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम इज अमी, दैट्स आपको चेक करना है। मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है तो मैं खाली छोड़ दूंगा। देन वी हैव कुमार, डन है। गार्डियंस नेम, फादर और द गार्डियन नेम, यहां पे मेरे पापा का नाम है अंजनी कुमार, श्री अंजनी कुमार, तो लोग क्या करते हैं, अंजनी यहां पे लिखते हैं और कुमार यहां पे लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। This is only for the candidates, first name, last, middle name और last name. For the your parents, you have अंजनी कुमार यहाँ पे होगा, and mothers का नेम यहाँ पे होगा। बाई चांस मेरी मम्मी का भी नाम अंजनी कुमार है, बट दैट इज कुमारी है, ठीक है। स्पाउस नेम कंपलसरी नहीं है, आई हैव अ मैरिड बट कंपलसरी नहीं है, तो हम क्यों ही इसमें जाएं। आगे जो डिटेल है, देखो आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत हो गया है, बिलीव मी, यू नीड टू हैव अ न्यू ईमेल आईडी और एक न्यू फोन नंबर्स के साथ अपने आप को फिर से रजिस्टर करो। नाम गलत नहीं कर सकते हो। सर मैंने नाम गलत कर दिया और पैसे पेमेंट कर दिए, अब क्या होगा, देन आप हमसे बात करो, हम उसे रेक्टिफाई करवा लेते हैं। अब चिंता मत करो, अगर नाम गलत भी हो गया है और आपने पैसे पेमेंट कर दिए हैं तो दोबारा फॉर्म मत भरिएगा, वो चेंज हो जाता है। आपने पेरेंट्स नेम गलत कर दिए हैं, दोबारा फॉर्म मत भरना, वो चेंज हो जाता है। अमीय कुमार, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, दोबारा फॉर्म मत भरना, वो चेंज हो जाता है। कैंडिडेट्स का जेंडर मेल, ये जनरली गलत मत करना, ऐसे ये भी चेंज हो जाता है। नेशनलिटी इंडियन, ये गलत मत करना, लेकिन ये भी चेंज हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी गलत नहीं करेंगे, कैटेगरी चेंज नहीं होता है, किसी भी कीमत पे आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। इसके ऊपर आप कुछ गलत करोगे तो चेंज हो जाता है। मेरी कैटेगरी जनरल है, मैं जनरल को टिक करता हूं, बट आपको बताने के लिए मैं सब कुछ टिक कर देता हूं। लेट्स गो टू द ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को फिल करना होगा। आप झारखंड से हो, आपका कास्ट का ट्राइब क्या है आपको यहां पे डालना होगा, ट्राइब नेम आपका क्या है क्या नहीं है। ओके, सो इफ वी गो, वी नीड टू हैव द कास्ट ट्राइब नेम। लेट्स चेक इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेट्स हैव अ जनरल ईडब्ल्यूएस, मैं कास्ट को यहां पे पहले झारखंड कर लेता हूं। झारखंड के बाद ट्राइब नेम मेरे को चेंज नहीं करने दे रहे हैं, मीन्स देयर सम इशू इन दिस। आप इसे रिपोर्ट कर देना कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। एनीवे, हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, बिकॉज ईडब्ल्यूएस का कोई ट्राइब नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस आर ऑल द पीपल विच आर नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी, तो ये अपने आप ऑटो जनरल लेके आता है। सर्टिफिकेट इशू डेट, ये देखो, ये जो सर्टिफिकेट इशू डेट है, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो क्या हम पुराना जा सकते हैं? यस, वी कैन गेट इनटू द पुराना। कितने साल तक का आप ले सकते हो यहां पे, अगर आप देखोगे तो आप 25, 23 भी जा सकते हो। लेकिन आप हमेशा याद रखो, ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी शुड ऑलवेज बी वैलिड फॉर अप्रैल 2026। अगर आपने नहीं बनाया है तो एप्लीकेशन डाल दीजिए एफिडेविट के साथ। अभी यहां पे है, यहां पे उन्होंने स्क्राइब एफिडेविट दिया है, अभी तक इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया है। एफिडेविट के साथ हम यहां पे डाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है या एनसीओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है फॉर आफ्टर द 1 अप्रैल 2026, तो आप अपने पुराने सर्टिफिकेट के बेसिस पे, जो आपके पास सर्टिफिकेट है और इस साल के एप्लीकेशन पे जो आपने एप्लीकेशन डाला है के साथ
दोनों को एक ही में क्लब करके अपलोड कर सकते हो। कहां पे अपलोड करना होता है? बिलो डिटेल, आपको डिटेल्स में यहां पे अपलोड करना होता है। ठीक है सर, मैं तो पहली बार बनवा रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो स्क्रीनशॉट होगा, कोई आपके पास रिसीट होगा, या आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके फोटोकॉपी को स्कैन करके यहां अपलोड कर सकते हो। तो you should have your EWS and NCOB certificate after the 1st of April. Then, अगर मैं आप बात करूं NCOBC EWS सर्टिफिकेट शुड बी, मैंने बहुत एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हो, अलास टीम की, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे। वो इस फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फॉर्मेट, अगेन मैं आपसे बोलता हूं, लाइक यू हैव द IBPS में भी सेम फॉर्मेट चलता है NCOBC और EWS का, दैट इज अ बैंक एग्जाम। अगर मैं एनसीओबी कर लूं तो उसमें बट आईबीपीएस का स्टैंप होता है, तो जनरली हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। आपके पास अगर वो स्टैंप 1 सर्टिफिकेट है, आप इसको डाउनलोड कर लो, दैट्स द पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकालो, फिल द डेटा and get it properly signed by the competent authority like the तहसीलदार, DC और any DFO, anyone who is the competent authority, उससे साइन करवाओ। इसमें होना चाहिए सर आई हैव द स्टेट वन, I have the state 1 certificate. The certificate is of the state 1. Is it valid or not? For the CAT form certification, you can use the state certification. आप कर सकते हो. But for the future use, you must have the central certificate. ये जो सर्टिफिकेट है आपका, इसको साइन होना ही होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टेट, आप इसे प्रिंट आउट करो, अपने फिल करो अपने फॉर्म को, फोटो टेस्ट करो, यहां पे डालो और अपने कंप्टेंट अथॉरिटी से साइन करवा लो। और ये जो भी होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे आईएम्स आपके ओल्ड सर्टिफिकेट्स को नहीं मानेंगे, आपके स्टेट सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। तो अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है, ओल्ड सर्टिफिकेट है, या किसी और कॉलेज लाइक दिस सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कैट उसे बहुत बार नहीं मानता है। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर द आईबीपीएस, उसे शायद यहां नहीं माना जाएगा। तो आप साइन करवा लो, आपको करना है ईडब्ल्यूएस का, एंड इशू डेट आपको डालना है, क्या है क्या नहीं, आप इशू डेट डालिए। और ये जो इशू डेट है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो कोई भी एक टेंटेटिव डेट आप जब भी एप्लीकेशन आपने फॉर्म किया है डाल सकते हो, या जो आगे कोई टेंटेटिव डेट आप डाल सकते हो। अभी जो आपने फॉर्म फिल किया है तो उसको डेट को डाल सकते हो। अगर कोई पुराना है तो आप पुराना इशू डेट यहां पे डालोगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन का रिसीट के साथ, जो इस तरह आपने फिल किया है। सेम गोज विद एनसीओबीसी, यहां पे आप इशू डेट डालना, आपका जो भी है आप सिलेक्ट करना, सीरियल नंबर और कास्ट नंबर। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं जा रहा है, ये ओनली 5 डिजिट लेता है। बट आपका जो नंबर ऑफ कास्ट है या सीरियल नंबर है, कुड बी मोर देन 5 डिजिट। यहां पे आप क्लिक करोगे तो आप यहां से सेंट्रल लिस्ट में जाके देख सकते हो, जो अभी खुल नहीं रहा है। तो आप इसे गूगल कर लेना, एनसीबीसी में आप जाके इसे चेक कर सकते हो कि आपका कास्ट नंबर क्या है क्या नहीं है। अगर सीरियल नंबर और कास्ट नंबर इज मोर देन 5 डिजिट, देन लास्ट 5 डिजिट को यहां पे फिल करते हैं। कास्ट और ट्राइब नेम एज पर द सर्टिफिकेट आपका क्या है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर सीरियल नंबर और एंट्री नंबर इज मोर देन 5 डिजिट, जस्ट फिल द लास्ट 5 डिजिट, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक किया जाएगा। इसे याद रखिएगा। आई नो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो यहां पे है। फॉर द एससी अगेन सेम, आपकी क्या है, कास्ट ट्राइब नेम क्या है, आप वो कर सकते हो। फॉर द एसटी इज अगेन द सेम, एससी एसटी का कोई सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो हो सकता है। कंडीशन अप्लाई, यू शुड बी इन द SC ST एज ऑफ नाउ। बहुत सारे स्टेट में SC ST के ट्राइब को भी हटा के उनको OBC में डाला गया है। तो यू शुड बी SC ST एज ऑफ नाउ। और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लर्न पे जाके पूछ सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई एम ए जनरल, मैं यहां करता हूं। सो दिस हैज ऑल द डाउट्स फॉर द कैटेगरी, आई होप इट इज फाइन। डू यू बिलोंग्स टू द बेंचमार्क, बेंचमार्क मींस 40% ऑफ द डिसेबिलिटी होनी चाहिए। नो, हम नहीं है। आप यस हो गए तो सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आपको, क्या है क्या नहीं है। मेजरेबल, अगर यस है तो आपको देना होगा परसेंटेज कितना है, यूआईडी नंबर कितना है, कैटेगरी आपकी कितनी है, ये देना होगा। व्हील चेयर सपोर्ट चाहिए तो आपको लिखना होगा। डू यू वांट द स्क्राइब चाहिए, तो देखो अब स्क्राइब बहुत कम लोगों को मिलता है, तो स्क्राइब का आप जाके देख लीजिएगा कि आपके पास लोकोमोटिव का प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको स्क्राइब मिलती है। लेकिन मैं तो नहीं हूं यहां पे, तो मैंने डाल दिया। तो नेम चेंज हो सकता है, फादर पेरेंट्स नेम में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो चेंज हो सकती है, स्पाउस नेम में भी प्रॉब्लम हो तो चेंज हो सकता है।
डेट ऑफ बर्थ को भी हम लोग चेंज करवा सकते हैं, जेंडर को भी हम थोड़ा सा चेंज करवा सकते हैं, बट गलत मत करना। नेशनलिटी को भी हम चेंज करवा सकते हैं, बट गलत मत करना। कैटेगरी को हम चेंज नहीं करवा सकते हैं। आपने यहां पे जो फिल कर दिया सो फिल कर दिया। यहां पे मैं एक बात और बोल दूं कि सर आज मैंने जब फिल किया तो मैं जनरल से फिल किया, बट मुझे पता चला कि मैं ईडब्ल्यूएस हूं, या मैंने एनसी से फिल, मैंने ओबीसी फिल किया, मैं एनसी हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आईएम्स के लिए आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आईआईटीज के लिए, एफएमएस के लिए, बाकी वो कॉलेज जहां पे एक रिजर्वेशन होता है वहां पे आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। न्यू फॉर्म भरवाते हैं वो। यहां से बस वो आपका बेसिक डिटेल और कैट मार्क्स और कैट परसेंटाइल लेते हैं। आगे चलते हैं। एड्रेस लाइन should go to the address and education. So my address is education में डाल देता हूं। So we have education। फर्स्ट लाइन कंपलसरी है, सेकंड लाइन नहीं कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी है, मैं लिख देता हूं फिर भी जस्ट फॉर से कि आपको पता चल जाए कि एजुकेशन कहां पे है, रांची में है और कहां पे है, प्लाजा चौक के पास है। ठीक है, दिस इज द केस। कंट्री, आई नो आई एम फ्रॉम द इंडिया, आपको भी देख लेना। यूनियन क्या है, मेरा झारखंड है, सो झारखंड में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या है, दैट इज रांची, RAN आप लिखो आ जाएगा। टाउन सिटी भी क्या है, दैट इज रांची। द केस पिन कोड क्या है, 834001। प्राइमरी ईमेल एड्रेस मेरा ami@3learning.co.in था। सेकेंडरी हमसे पूछा नहीं गया है। प्राइमरी नंबर ये है, दैट इज 9905050159। दिस इज ऑफिस का नंबर। इज द परमानेंट एड्रेस सेम? यस कर दो ना, अगर नहीं भी है तो भी यस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आपसे वो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप फिल्ड हो जाएगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर दैट इज 70041500, जस्ट लेट मी 94। दिस इज अगेन अ मोबाइल नंबर जो कि ऑफिस का है, रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट्स कोई काम नहीं है तो हम नहीं भरेंगे। अब हमें फोटोग्राफ्स चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये हमें चाहिए। पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए, डन, हमें ये सब कुछ चाहिए। हिंदी इंग्लिश में ही होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीडब्ल्यूडी ये सारे सर्टिफिकेट होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। सर मैंने गुजरात से बनाया है, माई सर्टिफिकेट इज इन द गुजराती। डाउनलोड द कैट फॉर्म्स से, आपका जो प्रेस्क्राइब जो फॉर्म्स है, कहां पे, यहां पे ये सारे फॉर्म्स है, डाउनलोड एंड गेट इट साइंड। सर वो नहीं करना है, क्या करें? तो आप उसे क्या करो, जस्ट गेट दी ट्रांसलेशन करवा लो इसका और उसको नॉट रीच से नोटिफाई करवा के अपलोड कर सकते हो कैट फॉर्म में, बट आगे आपको चाहिए होगा। स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डू नॉट नीड सेल्फ अटेस्टेशन। अगर स्कैन है तो उसको सेल्फ अटेस्टेशन नहीं चाहिए। अगर आप ओरिजिनल को स्कैन करते हो, ये हमेशा रखना, अगर आपने ओरिजिनल को स्कैन किया है या आपके पास ओरिजिनल है तो उसके लिए उसमें अटेस्टेशन नहीं चाहिए। बट आपने कहीं से मंगवाया है फोटोकॉपी, अगर आप फोटोकॉपी को स्कैन कर रहे हो तो वो जो फोटोकॉपी है उस पर साइन करके उसको स्कैन करना। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट शुड मैच विद द नेम ऑफ यू हैव मेंशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अब यहीं पर मैंने कहा था ना आपसे कि 10th में नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आज के टाइम पे ऑफिशियल नेम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। बट लोगों का बहुत बार सर्टिफिकेट में नाम गलत कर देते हैं, वो ह्यूमन है ना, नाम गलत कर देते, तो सर क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका नाम गलत हो गया है तो यूज द 10th का जो ऑफिशियल नेम है ऊपर में नाम यूज करेंगे। यहां पे अगर नाम गलत हो गया है बाई चांस तो हम फिर से एक एफिडेविट और नोटिफाई करवा देंगे कि ये नाम गलत है, यहां पे इसको ठीक कर दीजिए, ये होगा। चलिए स्कैन करते हैं फोटोग्राफ। फोटोग्राफ स्कैन करने का देखिए 1 MB का होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, दिस इज फॉर द जेपीजी एंड द दिस फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी होनी चाहिए, पीएनजी होनी चाहिए, आप इसको से उसको चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर भी जो है आपकी ये होनी चाहिए। तो लेट्स क्लिक हियर टू अपलोड। मैंने किया, एक न्यू विंडो ओपन हुआ है, मैंने फोल्डर्स पहले से खोल रखा था। तो इस फोटो को मैं यहां पे ड्रैग डाउन करता हूं, ये हो चुका है। ह्यूमन फेस इज नॉट प्रेजेंट, इमेज इज टू स्मॉल टू चेक, ऐसा है। अब मैं ऐसा करता हूं कि दूसरे इमेज को हम अपलोड करते हैं। यहां पे जब मैंने अपलोड किया तो ये अपलोड हो गया। देखो यही है ना कि जो उससे पहले अपलोड किया था उसका साइज छोटा था, ये अपलोड हो गया। और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये आपका हो चुका है, आप व्यू देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपलोड करते समय कुछ और अपलोड कर देते हैं, मार्कशीट अपलोड करते हैं, कुछ और अपलोड करते हैं, वो गलत मत करना। यहां पे भी लोग गलतियां करते हैं। हमने इसे अपलोड कर दिया है और इसे सेव करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम साइन अपलोड करते हैं। लेट्स अपलोड द साइन। आई एम गोइंग टू अपलोड माई साइन एंड द साइंस अपलोड हो चुका है। सो दिस इज फाइल हैज बीन अपलोडेड एंड द क्लोज। एंड एक बार व्यू कर लो, आपका साइन अपलोड हो चुका है, और सेव और एग्जिट करो। प्लीज सिलेक्ट द कंट्री। मैंने कंट्री सिलेक्ट नहीं की है तो वो बता देंगे कि तुम्हारा कंट्री सिलेक्ट नहीं हुआ है। दिस इज फॉर व्हाट, एड्रेस लाइन के लिए।
दिस इज झारखंड, डिस्ट्रिक्ट इज द रांची। चलो कोई बात नहीं है, इसी के बहाने आप मुझे जान जाओगे कि मैं रांची से हूँ और हम लोग रांची में मिलेंगे। दिस इज रांची, पिन कोड इज द 834001। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कैपिटल क्यों नहीं लिखा? देयर इज नो नीड, बट हम लिख लेते हैं, चलो अच्छा दिखता है। और हमने कुछ नहीं छोड़ा है, ये आपको बताते रहेंगे, हाँ या दोनों सेम है, हम इसे यस कर देते हैं। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी भरना है, दैट इज 7001 7041 50094। यहाँ पे है, आपने अपलोड किया है और सेव नेक्स्ट करते हैं। सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, बहुत देर तक खुला हुआ था, इसलिए सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है। अब सेशन जब एक्सपायर्ड हो चुका है तो हमें ये दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। ऐसा आपके साथ होता है क्योंकि आप बहुत देर तक ओपन करके रखते हो। तो चलिए हम फिर से लॉग इन करते हैं, कहां से? यहां से। लेट्स वी नीड टू हैव द लॉग इन। सो कैंडिडेट लॉग इन हम करते हैं, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द यूजर आईडी। सो हम यूजर आईडी को यहाँ पे फिल करते हैं। वो कहां से फिल करेंगे? जो हमारे पास मेल आया होगा। तो लेट्स ओपन द मेल। वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों है, तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। सो वी हैव दिस वन, द यूजर आईडी ऑन द मेल हमारे पास है। और इस चीज को सेव रखिएगा। ये मेरा मेल अपडेट्स में आया है, मैं इसको प्राइमरी ईमेल में डाल लेता हूं और इसको एक स्टार कर लेता हूं। इसको क्या कर लेता हूं? स्टार बना देता हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो वी हैव द ईमेल आईडी। आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास पासवर्ड वही होना चाहिए। तो वी हैव यूजर आईडी एंड देन द पासवर्ड। सो लेट्स कम टू द पासवर्ड। एंड दिस वीडियो इज अनफिल्टर्ड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको फिल्टर लगा रहा हूं। जो भी चल रहा है, अगर आप बहुत देर तक रखोगे तो आपका वो टाइम आउट हो जाता है। तो आपको जल्दी, इतना तो आप टाइम लोगे नहीं, आपको तो फटफट आप भरोगे, लेकिन जल्दी जल्दी भरने पे भी आप क्या करोगे? गलतियां नहीं करोगे। यूजर आईडी है, फोन टू सिग्नेचर है, हमारा अपलोड हो चुका है। हम एप्लीकेशन पे जाते हैं फिर से। वो सेव हो चुका था, बट सेशन एक्सपायर कर चुका था मेरा। तो मुझे दोबारा सेशन को लॉग इन करना है, बट मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। ये सारा इंफॉर्मेशन है। अमीय कुमार कैंडिडेट फर्स्ट नेम मुझे फिर से भरना है, एंड द फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुमार आएगा। फादर्स नेम अंजनी कुमार, देन वी हैव अंजनी कुमारी। स्पाउस नहीं डाल रहे हैं। अदर पर्सनल डिटेल्स में आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका फिल किया हुआ है। जेंडर इज द मेल। नेशनैलिटी मेरी इंडियन है। कैटेगरी मेरा जनरल है, जो मैंने पहले बताया है। मैं पीडब्ल्यूडी से नहीं हूँ। यस मैं कर दूंगा तो डेटा आएगा, मैं नहीं हूँ पीडब्ल्यूडी से। एड्रेस लाइन मेरी क्या है? एड्रेस लाइन इज एजुकेशन नियर प्लाजा सिनेमा अबव कैनरा बैंक, कंट्री इंडिया, स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट रांची, सो वी हैव झारखंड। यहाँ पे झारखंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन वी हैव रांची, देन टाउन एंड सिटीज अगेन द रांची। पिन कोड इज 834001। ईमेल एड्रेस है, अल्टरनेट की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर है, यस हमारा परमानेंट एड्रेस और ये दोनों सेम है। इमरजेंसी में क्या है? 700141500194। और हम इसे आगे जाएंगे। सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया और सेव नेक्स्ट करते हैं। तो डेटा सेव हो चुका है। नाउ वी नीड टू फिल द एकेडमी डिटेल्स। बोर्ड नेम, आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड। आपका जो भी बोर्ड है वो गलत मत फिल करना, बिकॉज आपके इस बोर्ड के थ्रू नॉर्मलाइजेशन जो IIM के करता है, IIM लखनऊ भी कभी कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है अभी, लेकिन जब वो करता है, और IIM बैंगलोर नॉर्मलाइजेशन करता है, तो आपके बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ कंप्लीशन आपकी कब है? दैट इज टेंटेटिव डेट, आप उसे डाल दीजिएगा। मैं कब पास हुआ हूं मुझे याद, दैट इज 1998 होगा, आई होप सो। यस, सो दिस इज 1998 में मैंने 10th किया है। कब किया है? दैट्स जून जुलाई में मैंने किया होगा। टेंटेटिव आपका जो भी होगा, आप अपने सर्टिफिकेट में जब आप मार्कशीट देखते हो तो उसमें लिखा होता है मंथ और ईयर।
मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने थे 500, मैं रैंडम डाल रहा हूं, आपके पास हो सकता है 700 हो, बेस्ट 5 नहीं लेना है, जो भी आपके पास हो 700 हो 800 हो, आप वो मार्क्स डालिएगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन मैं मान लेता हूं कि 350 है, ठीक है, और परसेंटेज है मेरा दैट्स मीन 75.00, ये मेरी परसेंटेज है। मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑल सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, इंडिकेट समेशन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, सारे मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए। सर मेरा सीजीपीए है, तो सीजीपीए को कन्वर्ट करो ना, और डाउट्स हो तो पूछ लो। 500 टोटल मार्क्स होनी चाहिए, ये है। फॉर कंप्यूटिंग द परसेंटेज दिस इंक्लूड एडिशनल सब्जेक्ट, जो भी आप उसे यूज करो, परसेंटेज में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप उसे यूज कीजिए। आपका 12th है तो उसको यूज करो, डिप्लोमा है तो उसको यूज करो। सो आई एम द 12th, और डाउट हो तो पूछ लीजिए। दैट्स अगेन द बिहार बोर्ड, दैट इज बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल है वो। ये क्या है, मंथ ऑफ कंप्लीशन, अगेन ये जून जा रहा है और ये जा रहा है 2000। डिसिप्लिन क्या था मेरा, साइंस था, माय डिसिप्लिन वाज द साइंस। मैक्सिमम मार्क्स में अगेन डाल देता हूं कि 500 था और यहां पे 350, बिकॉज मुझे दोबारा तो एडमिशन लेना नहीं है। तो बट आप हमेशा डालोगे सारे सब्जेक्ट्स, 12th में भी सारे सब्जेक्ट। जीपीए हो तो उसको कन्वर्ट कीजिए, जनरली 9.5 का फैक्टर होता है मल्टीप्लाई करने का, बट हर एक बोर्ड का अपना फैक्टर है तो उसमें करना। परसेंटेज 75.00 और डबल डिजिट तक ही 00 जाता है। बैचलर डिग्री, आर यू इन द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर बैचलर डिग्री में हो तो आप इसको टिक करो, डिटेल फॉर्म करो, और आपको कुछ नहीं चाहिए। इन द फ्यूचर आपको फाइनल ईयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आप अपने एचओडी से या अपने प्रिंसिपल से इसको साइन करवा के रख लीजिएगा, अभी नहीं चाहिए, बट आप साइन करवा के अपने सेफर साइड में रख लो, कि हो सकता है कल कॉलेज से बाहर निकल गए तो साइन नहीं करते हैं वो। क्या फाइनल में हो, नहीं हो। हैव यू कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अगर नहीं होता तो आपको यहां पे देना होता है। हु कैन फिल द कैट फॉर्म, if your all the examination of graduation is going to complete, or the BA मतलब or the pass or the honors, anyway either the 3 years or the 4 years, it is going to complete all the examination including the backlog by the June 2027, you are eligible for the CAT, and the result should come either the September, October, November, December, depends on the college to college, but all the examination should be completed in the month of by the month of June 2027। ड्यूरेशन ऑफ डिग्री मेरी कितनी है, मैं 3 इयर्स का ड्यूरेशन हूं। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है, आई एम फ्रॉम द मगध यूनिवर्सिटी, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, मगध सेंटर नहीं है, डीम नहीं है, ये क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आईटी बाकी कुछ है। आई एम फ्रॉम बिहार से हूं तो मैं यहां बिहार डाल देता हूं। यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, दैट इज मगध यूनिवर्सिटी का नेम है। नेम ऑफ द कॉलेज क्या है, दैट इज, मैं कुछ भी डालता हूं, गया कॉलेज रिलेटेड। डिग्री का नेम क्या है, दैट इज बीएससी। यहां गलत मत करना, आपकी जो भी डिग्री है, इवन इफ यू आर बीबीए, तो आप यहां पे मैनेजमेंट डालोगे। सर आई एम बीबीए फिनांस मेरा है, तो हम फिनांस अकाउंटिंग नहीं डालेंगे। इफ यू हैव द बीबीए डिग्री इट शुड बी, अगर आपका बीबीए है तो वो मैनेजमेंट में आएगा। आप देख लीजिए, आई एम द बीएससी, हम क्या है, वी आर इन द बीएससी, बैचलर ऑफ एससी। सो बीएससी, अब बीएससी में ऑनर्स नहीं दिखा रहा है तो हम इसको बीएससी कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बैचलर ऑफ साइंस, डू वी हैव द ऑनर्स, आई डोंट थिंक सो। क्या हमारे पास ऑनर्स डिग्री है, नहीं, हमारे पास बीएससी है तो बीएससी देख लेते हैं। इन द बीएससी वी हैव द बैचलर ऑफ बिजनेस, नहीं द बीएससी। बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, मेरे पास मास्टर ऑफ साइंस नहीं है, वोकेशनल नहीं है, आई एम द बीएससी, तो हम बीएससी बैचलर ऑफ साइंस को लेके आते हैं। डिसिप्लिन वाज माय मैथ्स मेरा, और यहां पे डिसिप्लिन अच्छे से डालना, क्योंकि इसके बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग होती है। अब कभी मैं बात करूंगा वो सब जो बकवास बोलते हैं वियर्ड कैटेगरी, वो सब नहीं होता है। मेरा जो है साइंस का स्ट्रीम है, आई एम नॉन इंजीनियर्स। मैथ्स मंथ मेरा जो कंप्लीट हुआ है ये भी जून में हुआ है, और ये कंप्लीट हुआ है 2004 में। अब देखो ये एक छोटा सा लोचा, 12th मेरा 2000 में कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन मेरे 3 इयर्स की है, और ये कंप्लीट 2004 में हुआ ड्यू टू द यूनिवर्सिटी बैकलॉग्स। नहीं, यूनिवर्सिटी डिले होती थी, तो आपका जो है वो डालिए। ये कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट कब होगा, जुलाई 2000, कमेंसमेंट कब होगा, जुलाई 2000, एंड द पासिंग कब होगा, जून 2004। तो सर यहां पे आपने 3 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है, ऐसे क्यों हुआ। टोटल मार्क्स तो मैं अगेन 500 डाल देता हूं, और मार्क्स इंक्लूसिव ऑल सब्जेक्ट्स, ये नहीं है। यहां देखो, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होते हैं ना, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, इन्होंने बस लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये जो है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। द मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन इज एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स,
मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट इज द एज पर द, तो मैं आई एम अ मैथ्स ऑनर्स, तो हम बस ऑनर्स की मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। मैंने रैंडम मार्क्स डाल दिया है, परसेंटेज जो हमारा वो क्या है 75.00। लेट्स सी यहां पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज द 500, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज द 350, मैक्सिमम मार्क्स हमारी कितनी है 500 है, एंड यहाँ पे क्या है 75.00। मैं अगेन बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, दिस इज एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। डू यू हैव? नो, नहीं है। क्लिक इफ यू हैव करंटली फाइनल ईयर, अगर है कंप्लीटेड अनदर बैचलर डिग्री, और हैव, नहीं मुझे नहीं करना है कि मैं फाइनल ईयर में हूं और मेरे पास बैचलर डिग्री 2 है, मुझे नहीं करना है। मास्टर डिग्री मेरे पास है बट मैं नो कर देता हूं, अगर आप करोगे तो एक्स्ट्रा डिटेल फिल करना होगा, मैं नो कर देता हूं। आप कीजिएगा। प्रोफेशनल आपके पास है तो आप यस कीजिए, नो कर देते हैं। सीए, अगर आप सीए या सीएस हो और आपका सीए सीएस का मार्क्स ज्यादा है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स से, या अगर आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स 60% से कम है और सीए सीएस 60% से ज्यादा है, तो डू नॉट फिल द ग्रेजुएशन का मार्क्स, बिकॉज ग्रेजुएशन के मार्क्स को ज्यादा वेटेज मिलता है। आप सीए सीएस हो और आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, तो बहुत सारे कॉलेज ग्रेजुएशन के मार्क्स को इंपॉर्टेंट दे देते हैं, सीए सीएस के मार्क्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। तो अगर आपके सीए सीएस में मार्क्स ज्यादा हैं तो एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, तभी कीजिएगा। एकेडमिक्स वर्क एक्स डिटेल आप सीरियल नंबर 1 आप कर सकते हो, ठीक है, तो आपका सीरियल नंबर 1 आएगा, एड वर्क एक्स आएगा। सो दिस इज द केस, आप यहां पे इसको कर सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप यहां पे डाल दीजिए, एजुकेशन डेजिग्नेशन आपका जो भी है आप उसको डाल दो। स्टार्टिंग डेट मैं 2005 से काम कर रहा हूं इसमें, जस्ट फॉर सेक मैं नॉर्मल डाल देता हूं कि दैट्स द केस। आपका जो भी हो एकदम टू द पॉइंट डालना चाहिए। अगर बाई चांस डेट पता नहीं है, मंथ पता है, तो उसको डालिए, बिकॉज इसका प्रूफ देना होगा आपको। ऐसे नहीं कि हवा में सब बातें हो जाएंगी, इसका आपको प्रूफ देना होगा। दैट इज 2004 से मैं डाल रहा हूं, जुलाई से डाल रहा हूं, 1 जुलाई से मैं यहां डाल देता हूं, या इसको ऐसा करता हूं 31 अगस्त कर देता हूं, जुलाई को अगस्त कर देता हूं कि ऊपर में क्लैश नहीं करे। और ये जो होना चाहिए, ग्रेजुएशन जिस दिन खत्म हुई है, ग्रेजुएशन के बाद का ही ये होना चाहिए। एंड डेट अभी जो आपका चल रहा है वो डाल दीजिए, टिल द जुलाई तक आपका है। ब्रेक इन द डेज, अगर आपके कोई भी डेज में ब्रेक थे इसमें, आप वो लिखना होगा। एक्सपीरियंस इन द डेज वो अपने आप ले लेगा। अगर कोई गैप है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए इन द क्रोनिकलर ऑर्डर, उसको जाओ, उसको सेव करो, ठीक है। यहां पे ये देखिए क्या हुआ है, जब मैंने सेव किया तो ये एकेडमिक्स में आ गया। अब मैं ग्रेजुएशन को जब देखता हूं तो ये जून 2004 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और मैं इसको सेव नेक्स्ट करता हूं, क्या कि इन्होंने क्या किया है, डेटा सेव। यहां पे जब मैंने सेव किया है, इन डेज हम नहीं कर सकते हैं, ऐड रो हम कर सकते हैं। 0 मंथ 0 डेज है, यहां 2004 से है और यहां 2026 में है। एक्सपीरियंस ब्रेक हमारा क्या है 0, हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, ब्रेक 0 है। आप इसे खाली छोड़िएगा तो वो डेटा नहीं लेगा, तो ये ब्रेक 0 हो गया। यहां पे आपके कितने डेज हैं वो हैं, और एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। और आप क्या करो, सेव नेक्स्ट करो, डेटा सेव और नेक्स्ट हो गई। प्रोग्राम्स अगर आपको नहीं पता है तो सिलेक्ट ऑल करो। सर इसमें तो कुछ पीएचडी कोर्स है जो मुझे नहीं करना है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करना है, आप सिलेक्ट ऑल करो। इवन आप अगर ओनली एबीसी ब्लैक ही को टारगेट कर रहे हो तो भी आप बाकी को भी सिलेक्ट करो। इंटरव्यू तो देना होगा ना, फ्री में हम इंटरव्यू दे देंगे, वो मॉक इंटरव्यूज की तरह काम करना स्टार्ट कर जाएगा। अगर आपका कैब का इंटरव्यू आपके अहमदाबाद के इंटरव्यू से पहले होता है या जैब का इंटरव्यू पहले होता है तो हम इंटरव्यू देंगे, वो एक मॉक इंटरव्यू की तरह काम करेगा। हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, टेस्ट सिटी को हम देखेंगे, जो हमारा नियरेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे, 2 सिटीज को जाना है। बट सिंस मुझे नहीं भरना है तो मैं बस आईएम का क्या कोर्स करता हूं, अहमदाबाद डॉक्टरेट कोर्स को सिलेक्ट कर देता हूं, टेक्स्ट सिटी को अहमदाबाद डाल देता हूं। आप सिलेक्ट ऑल करोगे। अगर आप यहां पे मिस कर जाते हो किसी भी एक कॉलेज को फिल करना, आप दोबारा फिल नहीं कर सकते हो, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो दोबारा, आप इस चीज को दोबारा फिल नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको दोबारा फॉर्म भरने होंगे। तो ये गलती मत कीजिए, सारे कॉलेज को सिलेक्ट करो, टिक करो। इवन आपको नहीं भी जाना है तो टिक करो, एज अ मॉक इंटरव्यूज की तरह वो काफी होगा। हम आगे आएंगे, जितने भी कॉलेज हैं, आईएम बोध गया, सबको हम टिक कर देंगे, सबका प्रेफरेंस डाल देंगे। सर मुझे नहीं जाना है, कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो आपसे कुछ पैसे थोड़ी मांगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सबको टिक कर दीजिए। ये सारे जो कोर्स हैं,
इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको हमेशा वीडियो बताऊंगा, या आप देख सकते हो कि अगर किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो, एंड अगर आप जाना चाहते हो, लेट्स सी इन द प्रोफाइल मैपिंग में आपको अपना पूरा डिटेल फॉर्म भरना होगा। वी आर मेकिंग प्रोफाइल मैपिंग फॉर्म इजियर। हम यहां पे आएंगे और यहां पे आपको सारे कोर्सेज का डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कितने मार्क्स चाहिए कितने नहीं चाहिए। तो अभी ये मार्क्स आपको नहीं देखना है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फॉर्म्स को फिल करनी है। तो हमने सारे को टिक कर दिया, सिटी प्रेफरेंस को चूज कर दिया और सेव नेक्स्ट कर दिया, डेटा सेव हो गया। अब मुझे टेस्ट स्टेट चूज करना है पहले ये, तो मैं टेस्ट स्टेट झारखंड चूज कर रहा हूं। झारखंड में मैं पहला क्या जा रहा हूं, रांची जा रहा हूं। दूसरा भी मैं झारखंड जा रहा हूं। झारखंड में मैं रांची के बाद कहां जा रहा हूं, रांची के बाद मैं हजारीबाग जा रहा हूं बिकॉज बगल में है, या पहला सेकंड जमशेदपुर जाते हैं, ये भी बगल में है, या हजारीबाग चले जाते हैं बिकॉज हजारीबाग में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपके ऊपर, आपको जहां भी जाना है। तो लेट्स गो टू द हजारीबाग। थर्ड भी मैं झारखंड दे रहा हूं, लेट्स द थर्ड इज द झारखंड, और ये मैं जमशेदपुर डाल देता हूं, बगल में रहेगा। फोर्थ भी मैं झारखंड ही दे रहा हूं, और इस सिटी को मैं धनबाद डाल देता हूं। धनबाद से बेटर, हाँ धनबाद डाल देते हैं, लेकिन धनबाद से बेटर बोकारो बगल में होगा तो बोकारो डाल देते हैं। एंड द फिफ्थ सिटी को धनबाद डाल देते हैं, ये बगल में है, एज पर दिस आप डाल दीजिए, दैट इज फर्स्ट फिफ्थ सिटी इज द धनबाद। आप इसे बाद में चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी आप प्लान कर दो क्या है और सेव नेक्स्ट कर देते हैं। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आपका हो चुका है, ये आपका डिक्लेरेशन है। पेमेंट करने के पहले आप ये सब कुछ कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है। मैं आपसे बोलूंगा अभी रुक जाइए, पहले प्रीव्यू कीजिए। आप पेमेंट नहीं करना, पहले प्रीव्यू करना। प्रीव्यू में देख लेना क्या क्या गलती नहीं हो, नाम गलत नहीं होना चाहिए। सो यू हैव अमीए, लास्ट नेम सरनेम कुमार है, डेट ऑफ बर्थ इंडिया, यहां से यहां, फादर्स का नेम अंजनी कुमार एक साथ है, मदर का नेम अंजनी कुमारी एक साथ है, मेल है, जनरल है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इंडियन है, पीडब्ल्यूडी नो है। एड्रेस बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें सारे के सारे मार्क्स जो देख रहे हैं वो होंगे, 12th में सारे के सारे मार्क्स जो होंगे होंगे यहां पे एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स देखा जाता है, ये याद रखिएगा। ग्रेजुएशन का सेकंड और है तो आप आगे डालिए, सब कुछ डालिए। अगर आप CA CS हैं और आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स 60% से कम है और ग्रेजुएशन आपके CA में 60% ज्यादा है तो CA का मार्क्स यूज करो, उसको यूज मत करो। वर्क को अच्छे से डालो, जियो चलो, यहां पे सारे सिटीज को सिलेक्ट करो, इंटरव्यूज डालो, अपने प्रेफरेंस को देख लो। मैं रांची डालना चाहता हूं, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, सो एंड सो, पेमेंट डिटेल्स है, फोटो मेरा दिख नहीं रहा है। नाउ मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, अगर मेरा फोटो नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार पर्सनल डिटेल्स में जाके देखूंगा अपने फोटोज को कि क्या वहां दिख रहा है। यहां पे फोटोज नहीं दिख रहे हैं, यहां पे भी फोटोज नहीं दिख रहे हैं मेरे। इट मींस मैं क्या करना चाहूंगा, देखो आप गलत नहीं करना है, मतलब फिर से एक बार मैं प्रीव्यू करना चाहूंगा, रिफ्रेश करूंगा पेज को प्रीव्यू के लिए। मुझे सब कुछ सही चाहिए, डू आई हैव अ फोटो, फोटो नहीं है, दिस कुड बी एरर ऑफ द डेटाबेस से डेटा फेच नहीं कर रहा है। तो परेशान नहीं होना है, आप एक बार लॉग आउट कर लो अपने आप को, अपने आप को लॉग आउट कर लीजिए, फिर आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहां पे आ जाइए। तो माई आईडी इज दिस वन और पासवर्ड मेरा ये है, ठीक है। लेट्स ऑटो फिल द पासवर्ड, 1 सेकेंड, दिस इज द पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया है यहां पे, एंड देन द कैप्चा। कुछ भी गलत हो तो आप अपने आप के डेटा को रिफ्रेश करो और लॉग इन करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डेटा को रिफ्रेश करो, लॉग इन करो और देखो कि क्या आपका फोटो दिख रहा है। अभी फोटो दिख रहा है, दैट इज द प्रोफाइल में हमारा फोटो दिख रहा है। हम अगेन गो टू एप्लीकेशन करेंगे, कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे, इसे मान करेगा वी आर गोइंग टू डू इन द एप्लीकेशन। इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम एज पर द योर इंटरनेट स्पीड। मुझे पता है कि बहुत लंबा हो गया वीडियो, 1 घंटे से ज्यादा वीडियो चल रहा है, बट इसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर है, मैं टाइम स्टैम्प डलवा दूंगा। ये सब कुछ हो चुका है, दिस द केस। हम सेव नेक्स्ट करते हैं, डेटा सेव हो चुका है। वर्क एकेडमिक्स भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सेव नेक्स्ट करते हैं। मैं तो रिस्क नहीं ले रहा हूं किसी भी गलती होने का, आप भी रिस्क मत लेना, चेक करते रहना क्या है क्या नहीं है। मैंने एक सिटी मतलब मैंने एक ही चूज किया है कि आपको परेशानी नहीं हो।
कि मेरे कैट देने से आपको कोई इशू नहीं हो, आप सेव नेक्स्ट कर लेना। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद है, हम सेव नेक्स्ट करते हैं। सेव नेक्स्ट हो चुका है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आने के पहले मैं एक बार फिर से प्रीव्यू देखना चाहूंगा, बिकॉज प्रीव्यू इज द इंपॉर्टेंट, इसमें सब कुछ दिखता है। इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम। मेरा सब कुछ सही था, मुझे फोटो देखने हैं, फोटोज मेरे अब दिख रहे हैं। दिस इज डन। अब मुझे जो पेमेंट करना है वो 2700 करना है। यूपीआई से नील होगा तो मैं यूपीआई से ही पेमेंट कर दूंगा। आई रेड बाय क्लिकिंग टर्म एंड कंडीशन हम कर चुके हैं। आप जैसे ही सबमिट करोगे, दैट इज 542969, आपका फॉर्म्स क्लोज हो जाएगा। तो सबमिट इज नॉट अ इशू, रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन, सबमिट इज नॉट एन इशू। हमें क्या करना है, पेमेंट भी करना है। सबमिट इज नॉट एन इशू, पेमेंट के बाद इशू होना स्टार्ट होता है, पेमेंट के बाद। तो लेट्स सी, मैं क्यूआर कर रहा हूं, आप पेमेंट कर देना, इसका अच्छा रहेगा। अगर लाइव होता तो मैं तो बोलता कि आप ही पेमेंट कर दो। सो आई एम गोइंग टू डू द पेमेंट पार्ट। मैं पेमेंट पार्ट करता हूं एंड द 2700 का पेमेंट आई एम गोइंग टू डू द पेमेंट। सो ये रिडायरेक्ट हो रहा है, पेमेंट हो चुका है। बहुत अच्छा, मैंने कैट का फॉर्म भर लिया है। हमें क्या करना है, आप इसे प्रिंट करके रख लेना। दिस इज वन क्लिक। ये जो प्रिंट है मैं इसे सेव कर लेता हूं उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरे सारे के सारे फॉर्म्स हैं। कैट 2026 का है, ये सेव हो चुका है। डाउनलोड एप्लीकेशन को भी कर लेना, यहां पे आना और क्लिक हियर टू डाउनलोड करना, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एप्लीकेशन जो आपका डाउनलोड हो चुका है। आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। अभी भी टाइम है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए। डन। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग डिटेल्स ऑफ द कैट। हमने कैट का फॉर्म भर दिया है। लॉग आउट कर लेते हैं एंड कैट की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इवन अगर आप कैट की तैयारी करना चाहते हो और आप अपना बेस्ट देना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर सेशंस of the Quant LRDI. We have started the boot camp. हमने अभी बूट कैंप स्टार्ट किया है। फॉर द ऑनलाइन फीस इज द 6,999, ऑफलाइन के लिए 12,999 है। पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं पूछेगा। और कैट इज मोर अबाउट द गाइडेंस, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलते रहना चाहिए। फॉर द 199 आप अपने आप को हमेशा अपडेट कर सकते हो। आई गॉट द मेल कि हमारा कैट एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आई ऑल्सो गेट द मैसेज कि हमारा कैट एप्लीकेशन हो चुका है सबमिट। यहां पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या नहीं है। 999 में आपको मेरे गाइडेंस में मॉक्स देने को मिल जाएगा। वी हैव अ 25 फुल लेंथ मॉक्स मिनिमम मिलेंगे, उसके अलावा भी मॉक्स होगी, प्लस 25 ईच सेक्शनल टेस्ट हैं। आपके पास कैट पीवाईक्यू है, अगर आप टेस्ट के अंदर जाओगे तो आपका कैट पीवाईक्यू है। आपके पास कैट का टॉपिक टेस्ट है, स्नैप टेस्ट भी हम अपलोड करने वाले हैं। आपका कैट का फुल मॉक है, एनमेट का मॉक्स आने वाला है और बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी अगर आपको देखना हो, समझना हो कहां जाना है कहां नहीं जाना है तो आप टीम से बात कर सकते हैं। 9905050159 डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कैट का फॉर्म्स अच्छे से बनेंगे। दो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, दैट इज द 1 आवर का वीडियो हो चुका है, बट ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इन अंडर द कंसल्टेंसी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। I personally believe if you want the best result, you should have to give your best. Till the next video, myself Ami है। मैंने एक ही चीज जाना और समझा है, जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा, we are going to give our best. Think cat, think education.